Hey everybody, welcome back to my channel. So today we are gonna continue with the next topic of class 12th NCERT economics. We have started the book Indian Economic Development and this is the next topic of the chapter number 4th, I guess. The topic is strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990. I hope you can recall the same that 1950 to 1990 this was the first phase of the development of our economy. So in this first phase what kind of strategy we have followed so that our industrial sector could grow, that we'll discuss in this video. So let's begin with the very first feature of this policy was public enterprises were to play central role in the process of industrialization. I hope you can recall the same that we have discussed about the features of IPR, right? Industrial Policy Resolution. So in that, public sector was playing a vital role. Almost 17 industries were exclusively for the पब्लिक सेक्टर ओनली. तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी in the process of industrialization in the first phase of economic development. Keep in mind we are talking about the time period from 1950 to 1990. Don't get confused by comparing with now scenario. What is the scenario right now? You cannot compare right now. Once you have to focus on the first phase only. Second feature is प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल था क्योंकि उस टाइम हमें कुछ ऐसा सेक्टर चाहिए था जिसका मेन मोटिव जो है दैट मस्ट बी वेलफेयर इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रखा था. लाइक द ब्रिटिशर्स आर ड्रेन आउट आर वेल्थ. तो उस सब को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में लाने के लिए we had to focus on the public enterprises. So प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर कर दिया. अगर पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट है तो प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक सिस्टम था नॉट इक्वली प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट है. तो इसके अंडर एक सिस्टम था परमिट लाइसेंस राज सिस्टम. इस सिस्टम का क्या मतलब था that if you're gonna establish a new industry then you have to obtain license. Okay, second thing, if you're gonna enhance the production capacity then also you have to obtain license. अगर आप नया इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हो then also you have to take license. And if you're gonna increase the production capacity of the industrial unit then also you have to take license. तो कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स की हुई थी कि प्राइवेट सेक्टर एक पर्टिकुलर लिमिट तक प्रोड्यूस करेंगे, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ऐसा कुछ सिस्टम था इन द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स replacing the imports, substituting the imports by producing the same goods in our domestic economy. Production of such goods was to accorded high priority which were imported from the rest of the world. तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली वो गुड्स को हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे. इससे क्या होगा, हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. वी विल बी सेल्फ रिलायंट एंड हमें जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट विल ऑल्सो बी सेव्ड. अब देखो कुछ इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारे मामा जी तो हैं नहीं कि कुछ भी फ्री में दे देंगे किसी भी कंट्री से. If we are trading then we have to pay something and that is money, right? So if our country is importing something then we have to pay the foreign currency. I hope you remember that dollar is accepted as a common medium of exchange at the international level. There are other currencies also. We will discuss in the coming videos in the macroeconomics that why dollar is so important, why Sidhu Moosewala is singing the song. I hope you can understand. Anyways, you can check out the song. What is the importance of dollars, right? Chalo, anyways, if we are gonna import something then we have to pay the foreign currency, and if we will not import then we will save our foreign currency. तो वो हमारे पास रिजर्व हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे सो दैट हम फॉरेन करेंसी को सेव कर पाएँ एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ.
Next is protection of domestic industry from foreign competition. See, foreign countries or the developed nations, you very well know they do have good technology, so they produce the best quality products ever, right? And being a developing nation, we were not able to compete at the global level. तो हमें क्या करना पड़ा, अपनी इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना था. हाउ इट कुड बी पॉसिबल? तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? जो भी इम्पोर्ट्स हैं उन पे हैवी ड्यूटी लगा दी गई, हैवी ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट्स. इससे क्या होगा? इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे. एज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज, देन वी विल ट्राई टू इम्पोर्ट लेस गुड्स. इम्पोर्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे. जैसे ही इम्पोर्ट्स कम हुए, then we'll not be having the best quality products to compete. I can understand you may have the criticism for certain points, that also we'll discuss, because ये जो पॉलिसी है ये उस टाइम की है, ओके, 1950 टू 1990 की. इस पॉलिसी के कुछ गुड इम्पैक्ट्स भी हैं, बैड इम्पैक्ट्स भी हैं, दैट विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो. बिफोर दैट यू मस्ट बी क्लियर विद द फीचर्स कि पॉलिसी में था क्या, फिर हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, राइट? फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटाज. तो गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्ट कोटाज रख दिए, मीन्स इम्पोर्ट आइटम्स को फिक्स कर दिया, दैट वी कैन इम्पोर्ट अप टू दिस मच अमाउंट ओनली, वी कैन इम्पोर्ट अप टू दिस मच क्वांटम ऑफ गुड्स ओनली. तो ऐसे कुछ कोटा फिक्स कर दिए गए, सो दैट हमें फॉरेन गुड्स इंडिया में मिले ही ना. इससे क्या होगा? फॉरेन कंपटीशन नहीं होगा और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी. Ultimately, the main focus was to boost up the pace of growth of our domestic industry, and this could be possible if there is no foreign competition, right? So the next point is LSI was to be developed with the view to building an infrastructure base in the country. सी, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उसके लिए हमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे होगी. Then we have to focus on the transportation, we have to focus on the banking, insurance and other services as well. तो इन सब से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा. Next is SSI was to be developed with the view of achieving the objectives of employment and equity. I hope you remember, small scale industries are labor intensive. Labor intensive means more labor is involved and less capital investment is required. So SSIs contributes towards the equity. Small scale industries की वजह से employment opportunities increase हो जाएंगी, unemployment reduce हो जाएगी, poverty reduce हो जाएगी, gap between the rich and poor reduce हो जाएगा. जब ये गल्फ रिड्यूस होता है ना, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रिड्यूस होता है, दिस विल डायरेक्टली लीड टू द इक्विटी. सो एसएसआई किस लिए डेवलप की गई? सो दैट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी डेवलप हो जाए. I hope you like this video. Okay, fine. One important thing that I wanted to discuss, and in this way I'll come to know that how many of you are watching my video from beginning to end. The thing is कि ये जो वीडियोस होंगी इसमें ऑलमोस्ट सीधी बात, नो बकवास काइंड होंगी. अगर आपको चाहिए कि बकवास मारे टाइम वेस्ट करें, नो डाउट उसमें मेरा तो एडवांटेज ही है, मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे. बट मुझे लगता है कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की बजाय जल्दी से जल्दी जितना सिलेबस हो सके आपको कवर करना चाहिए. अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज़ वेरी पुअर सिनेरियो ऑफ एजुकेशन in our country, particularly in Punjab. I must say Punjab, Haryana, these kind of states. The problem is, I'm not blaming anybody. Please listen this carefully. देखो, जब तक स्टूडेंट्स सीरियस नहीं हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो कोई भी माई का लाल आपको पढ़ा नहीं सकता, ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव द विलिंगनेस टू स्टडी, देन ओनली आर क्वालिटेटिव मटीरियल विल वर्क. अदरवाइज वीडियोज़ आर लाइंग ऑन द यूट्यूब, ओके. सो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, भाई किसी का कुछ नहीं जाने वाला, खुद का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो. बेस्ट टाइम है आपके पास, इसको यूटिलाइज़ कर लो, आप ही का बेनिफिट है. बाद में सोचोगे कि यार लॉकडाउन के 3 महीने थे, 4 महीने थे, हमने वेस्ट कर लिए. तो आप वेस्ट कर रहे हो, हम नहीं वेस्ट कर रहे. टीचर्स आर ऑलरेडी like who are qualified, they have already completed their graduation, masters and other degrees, okay.
So the thing is, we are completing our duty. You people need to fulfill your duty. अब ड्यूटी इज़ ब्यूटी इन माई आइज़. जब तक आप बीइंग अ स्टूडेंट की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हो तो ये सब चीज़ें सब बेकार हैं. तो आप पढ़ लो, अभी भी टाइम है. आई एम नॉट गोना से अ लॉट ऑफ दिस, like having lot many things to say but not right now, so just focus on the studies, a simple term. चलो लाइक कर देना वीडियो को भाई, अच्छा लगा हो तो. वैसे ऐसी बातें कम ही अच्छी लगती हैं पढ़ाई वाली, लेकिन फिर भी आप किसी स्टूडियस बच्चे को, किसी सिंसियर बच्चे को अच्छा लगा हो तो लाइक करें. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करें, नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा. एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज एजुकेशनल वीडियोस को शेयर करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है. सो लेट्स सी. ओके, एनीवेज, थैंक यू.